all the attendees of this webinar. The today's topic for the session is life management, Jeevan Prabandhan. Earlier, as you might be aware of, Dr. Manisha ma'am was about to take this session, but because of some medical emergency, she is not allowed. Thakur ma'am was scheduled for next week, but because of this issue with Manisha ma'am, she is taking this session, and we are heartily grateful for her. So we welcome for joining us. And I would like to share a brief introduction of Mala ma'am. She is strongly involved in women empowerment from past 1 decade. She is also involved in associating young generation towards social welfare activities. Along with that, she has also given self-defense training to thousands of girls. She started a project based on Womania program named as Stress Free Women. Worked a lot to make youth aware of working in social sector. She led various social movements through Abhyas Mandal. She was part of various campaigns like Save Kanha River, Save Heritage, voter awareness, traffic awareness, etc. Her articles on contemporary topics can be read in various journals, and she is continuously working to connect the youth beyond self to society. She is a recipient of Youth Award by Govind Vallabh Pant University. She also received Asaram Bhakti Scholarship, Gaurav Samman, Tejaswini Samman, Vidushi Samman, and Jai Vigyan Puraskar, Nari Samman, Shakti Samman, and she is also honored by various social organizations. She did her MSc, MBA, MJMC, and she worked as a biotechnology lecturer at New Holkar Science College, Indore. So before proceeding ahead, I would also like to introduce the founding pillars of this Super and Mass Education Society. They are Rajesh Avasthi sir, Mukul Golwankar sir, Prakash Chaudhary sir, Neeraj Goyal sir, Sandeep Gupta sir, Samir Mule sir, Tanvir Khan sir, Anil Karamchandani sir, and obviously Parvez Khan sir. So among them, Prakash Chaudhary sir is the principal mentor of this Super and Mass Education. So I would request Chaudhary sir to please share a brief about our initiative of Super and Mass Education. Thank you so much, Dr. Varsi. Am I audible? Hello? Yeah, sure. Sir, your voice is clear. Yes, thank you so much, Dr. Varsi. And good evening to each one present in this webinar. And I have been asked to tell about Super and Mass Education. This wonderful and a very pious, genuine idea came in the mind of noble personality, Mr. Parvez Khan, who is the secretary of Abhyas Mandal. And it's, if I say it's his baby, it won't be wrong. And definitely when he shared with us, very rightly, Dr. Varsi told the founder pillars in this group are Mr. Neeraj Goyal, who is the chairman of UCMAS, Mr. Samir Mule, chairman Sandipani Education Society, Dr. Rajesh Avasthi, who is the principal of Chaitram School, Manik Bagh. Anil Karamchandani is one of the educationists who is associated with school education from years, and he understands the problems of students, particularly school-going students, in depth. Mukul Golwalkar sir is there, who is again in education from last 3 decades, and he is a mathematician, man of mathematics, and he is also associated with this. Sandeep Gupta sir is there, a well-known name of chairman, earlier chairman, Gupta Tutorials Indore. And when Parvez Bhai shared this idea with us, we thought it's a very good thing, and we wish to help the deprived section of the society, the section who do not get these all the facilities which are available. We wish to reach to them, and that's the reason the name of this group is Super and Mass Education, because we would like to give them best of best, so the super one, and mass, because we do not want to limit ourselves, but we wish to reach to the mass of the society who cannot do it. And in this connection,
the thought came in his mind in the early days of October month, and we have started it from 30th of October. And for 10th class, we are taking 4 subjects. And I must be very thankful to the great educationists who are associated with this and taking classes of these children. Mukul Golwalkar, Vice Principal, Vidyasagar School, and he's taking mathematics of class 12th. Bhushan sir is there. Again, he's taking mathematics of class 10th. Vijay Motwani sir is taking physics. Dr. Kirti Yadav is with us, who is taking chemistry, and children are enjoying. We would not restrict ourselves, we would not limit ourselves only just having these classes for 10th and 12th, but we wish to guide them what really the opportunities are for them, how they can prepare for different exams like 10th class students for NTS, for Olympiads, in 11th for KVPY, and different competitive exams like and NEET UG. This is what improved. In the same connection, today's session was kept for Mala ma'am, and for next week we were trying for Manisha ma'am. And this is what my address and my message to the children today is: sometimes the things will not go the way you wish, but the things will go as God plans and God decides for you. As today we thought Mala ma'am, and next week Manisha ma'am, what Dr. Varshi was saying, sharing with you, due to some emergency medical requirement, Mala ma'am was not able to take this session, and she would be taking in the next week. But we are grateful to, Manisha ma'am was not able to take, and now Mala ma'am will be taking. We are very, very grateful to Mala ma'am on a very short notice. She agreed, and she's also a part of this family associated with from a long time with Abhyas Mandal, and a very, very active member, a good speaker, good debater, and above all, a good human being. And I am sure the children will enjoy it. And this is how time to time the great personalities will be introduced to these children, because we do not know when and where, how and who is going to be benefited. As Gautam Buddha under a tree, he got a knowledge. All of a sudden, the same way will happen. We do not know whether Manisha ma'am will be able to lighten that spark, or whether it would be Mala ma'am who would be. But yes, if even we could reach to a few children also, and they could do something in life, we suppose the purpose, the aim of the super and mass education would be can be considered as a success. And I am sure when there are people, these great educationists are behind it, the speakers like Mala ma'am, Manisha ma'am are there, and sole devoted person, Mr. Parvez Khan is there. I have no doubt that it would not be successful. So without taking now time, I think this is the time for the speaker. I think I have cleared about super and mass education, and in coming days, many more things we'll be doing. Let's Corona go away, and then sometimes we'll be meeting offline also, and I'm sure the children are eagerly waiting for it. So thank you so much, Dr. Varsi, once again, and I hope I did the job you gave to me, that introduced super and mass education. Thank you so much. Thank you so much, sir. Mala ma'am, can we start? I request Mala ma'am to please take over this. 9:30 तक conclude करना है. जी मैम, as per your wish. Okay. सभी को नमस्कार. और बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा संकल्प आप सब लोगों ने लिया और सेवा का एक काम शुरू किया. शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी लगातार एक तरफ हम देखते हैं तो व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आप लोगों ने संकल्प लिया है कि ऐसे बच्चे जिन तक बहुत बेहतर शिक्षा नहीं पहुंच सकती, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे शिक्षकों से जो उनके अप्रोच में नहीं है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सभी को उसके लिए बधाई.
आदरणीय परवेश भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे जो है आज इस फोरम पर आने का अवसर मिला, और आदरणीय प्रकाश भैया का बड़प्पन है जो उन्होंने मेरे बारे में इतनी तारीफ की। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, आपने जो संकल्प लिया है ईश्वर उसको पूरा करे। हम बात शुरू करते हैं जीवन प्रबंधन की। जी हाँ, बात करते हैं लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। हम सभी के जीवन में चार जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में बात करें। एक होता है निजी जीवन, जिसको हम कहते हैं पर्सनल लाइफ। दूसरा होता है पारिवारिक जीवन, हमारी फैमिली लाइफ। तीसरा होता है सामाजिक जीवन, हमारी सोशल लाइफ। और चौथा व्यवसायिक जीवन, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो सभी के जीवन में जब हम देखते हैं तो मोटा मोटा ये चार जो है हमारे जीवन की एक अलग अलग, जब हम बात करते हैं तो अलग अलग पार्ट हैं। अब सबसे पहली बात आती है तो बात आती है कि लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मतलब सौभाग्यशाली हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन हमको ऐसी कुछ चीजें ध्यान में आती है कि आपके पास भोजन तो है, लेकिन अगर भूख नहीं है, आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, सोने की थाली में खा सकते हैं, चांदी के बर्तनों में खा सकते हैं, लेकिन भूख ही नहीं है, तो ऐसे भोजन का कोई औचित्य नहीं है। बहुत पैसा है, बहुत संपन्नता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप बहुत विशिष्टता है, मतलब आप दूसरों से अलग हैं, दूसरों से बहुत बेहतर हैं, कई काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। लेकिन अगर शिष्टता नहीं है तो वो विशिष्टता भी किसी काम की नहीं है। आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हैं, लेकिन आपका जो चरित्र है वो अगर सुंदर नहीं है तो वो सुंदरता भी किसी काम की नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो वो जो बुद्धि है वो भी किसी काम की नहीं है। आपका बहुत बड़ा परिवार है ऐसा आप कहते हैं, लेकिन अगर उस परिवार में प्यार नहीं है तो फिर उस परिवार का उतना महत्व नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सभी को ध्यान में आता है कि जीवन में हम सबके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले जब हम व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे, वहीं से शुरू होती है ये जो सफर है। जीवन प्रबंधन हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद का विश्लेषण करें। सबसे पहली बात आती है शिक्षा का प्रबंधन। यहाँ कुछ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम वहां से प्रारंभ करेंगे कि शिक्षा का प्रबंधन बहुत जरूरी है। मुझे अगर किसी ने कहा कि मेरा गणित बहुत अच्छा है तो इसलिए मुझे इंजीनियर ही बनना चाहिए, लेकिन मेरा मन है कि नहीं, मुझे तो वैज्ञानिक बनना है, तो ये जो डायलेमा, ये कंफ्यूजन की जो स्थिति बच्चों में हमेशा रहती है कि अगर किसी ने कहा है तो मुझे वो ही करना है। या फिर दूसरी चीज जो बार बार बच्चों को लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इतने ही प्रतिशत आए, लेकिन मेरे साथ में जो पढ़ता है वो मुझसे कम मेहनत करता है और उसको इतने प्रतिशत अंक हासिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्या करते हैं, हम हमारा 100% दे रहे हैं कि नहीं। उस प्रबंधन की आवश्यकता है कि आप अपना बंद कर 100% दूं? दें। और जब शिक्षा की बात आती है तो स्वाभाविक है कि बचपन से लेकर के जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक शिक्षा का बहुत महत्व है, और एक व्यक्ति को सदैव शिक्षक जो है उसकी आवश्यकता होती है। जब आप विद्यार्थी बनेंगे तो ही जो है आप हर प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में है तो स्वाभाविक है कि आप शिक्षक की बात मानते हैं, सुनते हैं, और वो जो आपको सिखाते हैं उस काम को आप करते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आजीवन विद्यार्थी बने रहना, ये सबसे पहली सीख है जीवन प्रबंधन की। जब आप सीखने की ललक रखते हैं, जब आप सीखने का मानस बनाते हैं, जब आपको लगता है कि मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, कुछ ना कुछ चीज है जो मुझसे बेहतर दूसरों में है, मुझे हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है यह प्रबंधन सबसे आवश्यक है। किसी से भी सीखा जा सकता है। बहुत छोटी सी बात है कि जब हम सड़क पे गुजरते हैं और गुजरते गुजरते हमारे हाथ में एक छोटा सा अगर कोई कागज का टुकड़ा है, और बहुत सहजता से हम उस कागज के टुकड़े को सड़क पर फेंकते हैं, और हमारे साथ में उंगली पकड़ के जो हमारा बच्चा चल रहा है वो हमें कहता है कि ये जो कचरा आपने यहाँ फेंका है इसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो बहुत छोटी सी शिक्षा है, लेकिन वो भी हमको सीखने को मिलता है। अभी तो हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं इन सब बातों को लेकर के। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जो लगता है कि ध्यान में आता है। दूसरा कि जब शिक्षा की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे आज हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों में, जैसे इस बार जो आंकड़ा है बच्चों की आत्महत्या का, वो पिछले वर्षों से कुछ कम रहा। हो सकता है कि अलग प्रकार की परिस्थितियां जो थी,
एक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे, वो कारण हो सकता है। लेकिन आप जितने भी शिक्षक यहाँ पर हैं और जितने बच्चे यहाँ पर हैं, सबको ध्यान में होगा कि हर प्रतिवर्ष 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का जब भी परिणाम आता है, तो उसके बाद जैसी परिस्थिति हम सब देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हम सबका मन दुखी होता है कि एक छोटी सी कोई परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए आपने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद आप सफल नहीं हो पाए, तो बजाय दूसरा प्रयास करने के और मेहनत करने के आप जो है किसी और तरफ मुड़ जाते हैं। तो यहाँ ये जरूरी है कि शिक्षा का प्रबंधन जब आता है, तो वहाँ ये भी बात आती है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। सबके पास 24 घंटे हैं, हर विद्यार्थी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे का समय, उस समय को प्रबंधन के साथ में वो विषय जो आपको ध्यान में आता है कि हम बहुत बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से आपको याद रहती हैं, तो आपके शिक्षक आपको बताते ही होंगे कि उन सबको हम पहले पढ़ लें और फिर बाद में जो डिफिकल्ट है, जो कठिन है, उसके अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि जब परीक्षा का समय है तो हम उसको आसानी से पढ़ सके। और जीवन में कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन भर ही परीक्षाएं चलती रहती हैं। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जब हम विद्यार्थी हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ऐसे समय में शिक्षा का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। किस विषय को कितना समय देने की आवश्यकता है, किस समय पढ़ने का समय बहुत बेहतर है, और कभी भी दबाव में आकर के किसी भी प्रकार से मेरा मन है कि मुझे कॉमर्स पसंद है, लेकिन मेरे जो मित्र हैं वो साइंस ले रहे हैं, इसलिए मुझे भी साइंस विषय ही पढ़ना है। तो जिस प्रकार की परिस्थिति आती है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो है माता पिता के लिए जो चीज है ध्यान में आती है कि कभी भी अपने बच्चे का जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना है, वो किसी अन्य से नहीं कराओ। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके तो इतने परसेंट आए, वर्मा जी के बेटे को देखो, उसके इतने प्रतिशत आए, शुक्ला जी की बिटिया को देखो, उसके इतने प्रतिशत आए। तो ये जो एक अलग प्रकार की जो आपाधापी चल रही है, मुझे लगता है कि इसका प्रबंधन की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो इसलिए नहीं है। तो शिक्षा का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जीवन में हमेशा विद्यार्थी बनकर के रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप बचपन से लगाकर ताउम्र जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप सीख सकते हैं। और जब आप सीखने का मादा रखेंगे, तो मान लीजिए कि जीवन प्रबंधन का जो सबसे पहला पार्ट है, पूरा जीवन बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने कभी पुस्तक हाथ में नहीं ली, लेकिन बहुत बड़े बड़े पाठ उनको पढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थी बन के रहेंगे तो स्वाभाविक है हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं समय प्रबंधन। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कहते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। स्वाभाविक है, देश को चलाने वाले जो लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी खोज करते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो सीमाओं पर तैनात हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। हर वो व्यक्ति जो बहुत बेहतर स्तर पे काम कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे, और एक आम व्यक्ति उसके पास भी 24 घंटे का ही समय। तो स्वाभाविक है कि समय का जो रोना है, जो हम लगातार रोते रहते हैं, तो मुझे लगता है वो हम बंद करेंगे। तो समय का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले जो बचपन से हमको सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में समय पे सोना चाहिए। अगर ये एक जो फंडा है, अगर हमने इसको अपना लिया, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी हमें लगे तो थोड़ा सा हमारा सोशल मीडिया का जो टाइम है उसको कम करने की जरूरत है तो कम करें। टीवी टाइम जो है उसको कम करने की जरूरत है तो उसको कम करें। इसके बजाय और कोई चीजें ऐसी लगती हैं जिनसे कुछ सकारात्मक हम सीख सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार जिनसे हो सकता है, तो वो करें। एक बार अगर हम करके देखेंगे कि मान लीजिए कि अभी अगर आप 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, तो आधा घंटा पहले उससे 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठ के देखें, 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठ के देखें। तो जरूर जो है आपकी वो सारी चीजें, कुछ ऐसी इच्छा जो आपकी हॉबी है, आपका शौक है, जिसके लिए आपको समय नहीं मिल पाता, कोई ऐसा सामाजिक काम है जो आपने सोचा है कि मुझे इस काम को करना है, लेकिन वही कि मुझे समय नहीं मिल पाता, परिवार के साथ बैठ करके नाश्ता करने का, चाय पीने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बस जैसे ही उठते हैं वैसे ही फटाफट चाय पी करके, नहा धो करके और नाश्ते की टेबल पे पहुंचते हैं, फटाफट नाश्ता करके अपने ऑफिस, अपने स्कूल के लिए भागते हैं। तो ये जो भागदौड़ वाला जीवन है, इसमें समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर समय प्रबंधन करेंगे तो मन से स्वस्थ रहेंगे, तन से भी स्वस्थ रहेंगे। समय प्रबंधन भी हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो विद्यार्थी हो,
शिक्षक हो, कहीं काम करते हो, अपना व्यवसाय करते हो, गृहिणी हो, सभी के लिए समय प्रबंधन अत्यावश्यक है। अगली जो हम बात करते हैं वो करते हैं शरीर प्रबंधन की। लोगों को लगता है कि शरीर के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी मार्च से लगातार हम लोग जिस पूरे समय से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों को ध्यान में आया कि इस पूरे कोरोना के काल में जब ऐसे लोग, ऐसा हमने भी कई बार सुना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना आकर के चला भी गया, मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। अभी मैं हूँ, आप हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है, जिन्होंने अभी अभी हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया होगा, अभी अभी गर्म पानी पीना शुरू किया होगा, अभी अभी अपनी सेहत की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगे। अभी ध्यान में आया कि डायबिटीज है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये नहीं होना चाहिए। एक शेर आप सबने सुना होगा, अगर दिल खोल लिया होता औजारों के साथ, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो अभी हम जिस प्रकार से, हमारी जो जीवनचर्या है, बहुत ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी है, और उस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी प्रकार से हम या तो केवल भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं, या फिर हमने अगर कोई गोल सेट किया है, उसके लिए प्लानिंग नहीं की है, इसीलिए प्लानिंग नहीं है, तो जैसा भी लगता है वैसे हम भागते चले जाते हैं, सुबह शाम दिन रात, बिना अपने चिंता किए। हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही, अगर पैसा कमाया है तो स्वस्थ रहेंगे तो ही वो पैसा काम आएगा, स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारी जो परीक्षा आने वाली है उसमें बहुत अच्छे से, जो मैंने सोचा है कि मुझे इतने अंक आना चाहिए, बहुत अच्छी सुंदर अक्षर में मैं लिख सकूं, तो जब मैं स्वस्थ रहूंगी तो ही मैं अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। जब मैं स्वस्थ हूँ तो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकती हूँ। अगर गृहिणी है तो स्वस्थ है तो पूरा घर परिवार की चिंता अच्छे से कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, निरोगी रहना बहुत जरूरी है, अपने शरीर का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर मुझे गुलाब जामुन मान लीजिए कि बहुत पसंद है, और मेरे सामने गुलाब जामुन रखे हैं, मैंने भोजन पूरा किया हुआ है, अब मेरे लिए ये जरूरी है कि अगर कोई चीज मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, अच्छा, तो ये ये माला है वो हमारा हमारे शरीर पर नहीं, होना चाहिए। मेरा और वीडियो मुझे ऑफ है लगता है ना। कि इसके लिए हम योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ऐसे कुछ चीजों को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। कोई एक ऐसा खेल जो आपको पसंद है, जो आपका शौक है, बचपन में हो सकता है आप खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हैं जो लगातार पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खेलकूद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो पहले के समय में और अभी के समय में जो है काफी सारा परिवर्तन आया है, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, जीवनचर्या में परिवर्तन आया है, इसलिए शरीर का प्रबंधन जो है वो बहुत जरूरी बहुत है। आवश्यक। हमारा जो शरीर है वो यहाँ से चलना चाहिए, शरीर यहाँ से चलता है, तो जब पूरे समय शरीर यहाँ से चलेगा तो हम खुश कैसे रहेंगे, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। तो दिमाग जहाँ लगाने की आवश्यकता है वहां दिमाग लगाएं, जहाँ दिल लगाने की आवश्यकता है वहां दिल लगाएं। हर काम दिमाग से नहीं होता, ऐसा सोच करके हम लोगों को काम करना चाहिए। और शरीर की जो चाबी है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शरीर को चलाएं, ये जरूरी है शरीर हमको चलाए। अगर ये परिस्थिति आती है तो फिर जो पूरा जीवन की जो चक्र है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर पर हमारी कमांड होना चाहिए। हमारा मन है, हमने तय किया है कि इतनी बजे नाश्ता करना है, इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे लंच, इतनी बजे डिनर, इतनी बजे जूस पीना है, ये सब चीजें जब जीवन में आती है, मुझे इतनी 20 मिनट तो मुझे वॉक करना ही करना है। जो भी आपका जो भी शौक हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, आपको लगता है कि मुझे दोस्तों से बातचीत करना पसंद है, मुझे गार्डन में जाना पसंद है, कोई भी दिन भर में एक ऐसी चीज जो व्यक्तिगत रूप से आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, जब हम मन से प्रसन्न होते हैं तो शरीर अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए शरीर का जो प्रबंधन है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में, और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम अभिव्यक्ति प्रबंधन की। हो सकता है हम लोगों को सुनने में कुछ नया लगे कि अभिव्यक्ति के लिए मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, उसके लिए प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं, जब हमारे बारे में कोई भी चीज हम सोचते हैं तो बहुत सामान्य तरीके से सोचते हैं। मुझे जो चीज पसंद है
तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो है हमारे साथ काम करने वाले हो सकते हैं, हमारे साथ पढ़ाई करने वाले हो सकते हैं, हमारे परिवार में हमारे साथ रहने वाले लोग हो सकते हैं। सबकी परिस्थिति, सबकी सोच, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती। तो जब हमको ऐसा लगता है कि मैं अगर बोलूं तो क्या मुझे पसंद है, मुझे तल्ख बोलना ही पसंद है, लेकिन जिन लोगों के बीच में मैं रहती हूँ उन्हें तल्ख सुनना पसंद नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मैं अभिव्यक्ति किस प्रकार से करूं। ऐसा कहते हैं कि कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होना चाहिए। किसी ने किसी के लिए कुछ कहा, हम जैसे ही सुनते कि फलाने ने आपके बारे में ऐसा कहा, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं बिना किसी चीज को कंफर्म किए। तो ये जीवन में बहुत जरूरी है, रिश्तों को अच्छा रखने के लिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे व्यवहार बेहतर करने के लिए। और वो जो एक लाइन हमेशा हम कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे, तो वो तब रखेंगे जब हम जो बोलते हैं उसमें हम किस प्रकार से दूसरों को भी उस रूप में समाहित करते हैं। मैं जो बोलती हूँ वो आपको भी अच्छा लगे, मैंने जो बोला है वो कर्णप्रिय होना चाहिए, मैंने जो वो बोला है वो यहाँ से निकलकर यहाँ होकर के बाहर नहीं जाए, मैंने जो बोला है वो यहाँ से निकले, यहाँ भी आए, लेकिन फिर यहाँ आकर के रुक जाए। तो हम ऐसा बोलने का प्रयास करें। हमारी कोई भी बात से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, वो बॉदर तो नहीं कर रहा, ये सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी हमारे अपने हैं उनके लिए हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उनकी लाइफ में हमारा भी उतना ही महत्व है। तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन किस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना ये बहुत जरूरी है। हर बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है। आप किस स्तर पर हैं, आप किस स्तर से उन चीजों को देखते हैं। तो बहुत ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो हमको लगता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही नम्र होता जाता है। ध्यान में आता है कि 86 वर्ष के रतन टाटा जी के पैर जो है 76 वर्ष की नारायण मूर्ति जब पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है कि विनम्रता, जितनी ज्यादा आप बड़े होते जाते हो उतना अपना आपके बारे में विनम्रता आती जाती है। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो जरूरी है कि हम स्वयं के लिए कठोर हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमको विनम्र ही रहना चाहिए। तो अभिव्यक्ति का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करें, बात को सुने, सोचें, समझें, उसकी तसल्ली कर लें, उसके लिए रिस्पॉन्ड करें। हमेशा जब भी आप रिएक्ट करना छोड़ करके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की बात हो, आपके पर्सनल लाइफ की बात हो, आपकी सोशल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, कहीं भी अगर ये फंडा अपनाते हैं तो ध्यान में आता है कि मैनेजमेंट का ये वाला जो फंडा है, ये जीवन में उनको बहुत बेहतर बनाता है, खुश रखता है। अगली बात करते हैं हम अभी मतलब पुराने समय में देखते हैं, तो अपने अगर घर के बड़े बुजुर्गों को देखते हैं तो हमेशा हंसते मुस्कुराते और फिट फाट हम लोगों को मिलते हैं। अभी आजकल हम देखते हैं कि कोई उम्र नहीं है। पहले ऐसा होता था कि ऐसा कहा जाता था कि जब आपका घर परिवार बाल बच्चे हो जाते हैं तो एक 40-45 साल की उम्र में व्यक्ति तनाव लेना शुरू करता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, इन चीजों का तनाव। लेकिन अब आजकल तो बहुत छोटी से छोटी चीज जो है उसका भी तनाव हो जाता है कि मतलब पड़ोसी ने कार खरीद ली तो उसका भी तनाव हो जाता है कि उसने जो है इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो उसका तनाव मुझे कि अब मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी कैसे आएगी। ये बहुत महत्व रखती है। तनाव का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उस काम से संतुष्ट हूँ। मैंने जिसको करके दिया उसने उसकी तारीफ नहीं की, मुझे इस चीज का भी तनाव है कि मैंने तो मेरा बहुत बेहतर किया, लेकिन सामने वाले ने जो है उसको मुझे वैसे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उसके कारण भी मैं टेंशन में हूँ। बहुत बार हम ऐसी बातों के लिए तनाव लेते हैं जिनका हमारे इर्द गिर्द हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सुबह जो है पत्नी ने टिफिन बना करके दिया है, तो जब आप टिफिन लेकर के जाते हो तो घर में तनाव रहता है कि अभी तक फोन नहीं आया, टिफिन नहीं खाया, खाना अच्छा था कि नहीं। इस प्रकार की जो चीजें
जिसका तनाव है, मुझे अगर ब्लड प्रेशर है, मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाना भूल गई, या मुझे डायबिटीज की गोली खाना भूल गई। ये जो चीजें हैं, ये तनाव जो है वो नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते ही होंगे कि जैसे बाहर मौसम होता है, वैसे शरीर का भी मौसम होता है। तो मेरे शरीर का मौसम जो है वो कैसा है, ये मेरे हाथ पे निर्भर करता है। मैं अगर हमेशा चिंता में रहूंगी, मैं हमेशा नकारात्मक चीजों को सोचूंगी, तो स्वाभाविक है कि मेरा जो शरीर है वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। आप में से कुछ जो है साइंस के विद्यार्थी भी हैं, और साइंस के कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं यहाँ। तो हमने सुना है, जब हम भी पढ़ते थे तो ध्यान में है कि एक हार्मोन सिक्रीट होता है, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो ऐसा आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, और आप जितना तेज दौड़ते हैं उससे ज्यादा तेजी से दौड़ने लगते हैं। तो आपका जो पूरा शरीर है वो आपके मन को जो है एक मैसेज देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि भाई कुत्ता पीछे पड़ा है और जितना तेजी से भाग सकते हो भागो। तो जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो हमारा जो शरीर है पूरी ऊर्जा लेकर के और उस काम को करता है। तो वैसा ही इस केस में भी होता है कि अगर मुझे किसी चीज का तनाव है, और अगर नहीं भी है, और मैं सोचने लगूं कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। एक सामान्य महिला जो घर में काम करती है, उसको भी बार बार लगता है कि अभी रोटी नहीं बनी, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये काम रह गया, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। तो बोल बोल के ही टेंशन हो जाता है। हम लोग जो है शुरू से बोलते आए हैं कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच में बदल जाता है। तो वैसे ही अगर हम बार बार अगर किसी चीज को नकारात्मक ढंग से ही देखें, तो वो हमेशा जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको नकारात्मक ही बनाती है। तो बहुत जरूरी है तनाव का प्रबंधन। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो गहरी सांस लेने का प्रयास करें। कोई पुस्तक आपको पसंद है, गाने सुनना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, ऐसा कोई भी काम जो आपको पसंद है, या ऐसे कोई लोग हैं आपके जीवन में जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, अगर उनको फोन घुमाया तो आपके जो शरीर का मौसम है वो ठीक हो जाएगा, तो खुशनुमा हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि उस काम को करना चाहिए। और बिना वजह का जो तनाव है उससे दूर रहना चाहिए। अगर तनाव हुआ तो मान लीजिए कि आपका पूरा जो लाइफ मैनेजमेंट है वो धरा की धरा रह जाता है। क्योंकि शरीर जो है जब तनाव होता है तो बहुत सारी बीमारियां साथ में लाता है। ब्लड प्रेशर लाएगा, ब्लड प्रेशर आएगा तो डायबिटीज आएगा, डायबिटीज ब्लड प्रेशर आएगा तो कार्डियक प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजें अगर आपको हो गई तो फिर स्वाभाविक है कि जीवन हमने, ईश्वर ने अगर एक बार जीवन दिया है और हमने जैसा सोचा है, जिस संकल्प के साथ सोचा है, अगर यहाँ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो आपका सपना है। जो शिक्षक जुड़े हैं उन्होंने सोचा है कि मुझे एक ऐसी पौध तैयार करनी है जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत बेहतर काम करे, और उनको ऐसी शिक्षा देनी है, तो आपका वो सपना कैसे पूरा होगा। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं इनका होना बहुत जरूरी है। हमने जो भी अपने जीवन में सोचा है वो सब चीजें कैसे पूरी होंगी। तो इसे तनाव बिल्कुल भी जीवन में, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो नियति है वो लिखी हुई है, आपका काम है केवल कर्म करना। तो जो कर्म आप करेंगे, बेहतर करते जाइए, अपना 100% देते जाइए, सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। अगली बात आती है पर्यावरण का प्रबंधन। अब आप सोच सकते हैं कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे लाइफ स्किल मैनेजमेंट का एक पार्ट हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि मैं अगर अच्छी खुली हवा में सांस लेती हूँ, अभी आपने पिछले अगर 2 महीने छोड़ के और पीछे जाएंगे तो आप सबको ध्यान है कि जब भी आपके घर की खिड़की दरवाजे खुलते थे तो बहुत अच्छी हवा आपको मिलती थी। जब आप अपनी अपनी छतों पे गए तो बहुत अच्छी जो है ऑक्सीजन का आनंद आपने लिया, और हम सब ने महसूस किया कि प्रदूषण कुछ कम हुआ है, हम सब ने अच्छा महसूस किया, सब तरफ हरियाली महसूस की, कोई भी जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं, और सबके मन को बहुत अच्छा लगा। तो स्वाभाविक है ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब मैं हाथ में प्लास्टिक का बैग लेकर के अगर बाजार में जाती हूँ, और वहीं अगर मैं एक जूट का बैग लेकर के बाजार में जाती हूँ, तो कॉन्फिडेंस जब आपको आता है कि मैं, ये जो प्रकृति है और मैं इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो एक बहुत छोटा सा प्रबंधन है जो आपको लोगों से अलग करता है, जो आपका जीवन का हिस्सा है। जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं प्लास्टिक की बोतल का उपयोग नहीं करता, नहीं करती, मुझे तो मेरा एक स्टील का ग्लास है, मेरे बैग में रहता है, या ये मेरी बोतल है, ये मेरे साथ हमेशा रहती है। जब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको दूसरों से कुछ अलग बताती हैं, आपको स्वयं, जो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि हमको स्वयं को अच्छा लगता है
कि हाँ, मैं जो है प्रकृति के लिए भी हम उतने ही रूप से जिम्मेदार हैं। पुराने समय में तो ऐसा सिखाते थे कि हवा, पानी, अन्न, जितनी भी चीजें हैं, बिजली, ये सबके लिए है। प्रकृति ने, नेचर ने सबको दिया है। मेरा एकाधिकार नहीं है। अगर मैं मेरी कार अगर मैंने बाहर खड़ी करके पाइप से धोना शुरू की, तो वो पानी मेरा अकेले का नहीं है। उस पानी से न जाने कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है। अगर मेरे घर की जो लाइट है वो 24 घंटे में से 24 घंटे जलती रहती है, मैं तो बहुत सक्षम हूँ, मैं बिजली का बिल भर सकती हूँ। तो ये जो चीजें हैं, इससे परे जब हम ये करते हैं कि भले ही मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं सब चीजें कर सकती हूँ, सब खरीद सकती हूँ, लेकिन ये जो है ये प्रकृति प्रदत्त है, और पर्यावरण जो है इसकी रक्षा करना ये भी मेरे जीवन का हिस्सा है। हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि पेड़ पौधों की देखरेख करना चाहिए, इससे ऑक्सीजन मिलती है, हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है। तो मेरे जीवन में एक छोटा सा प्रबंधन ये भी जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है समाज प्रबंधन। जब हम सोशल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से लोगों में घुल मिल जाते हैं, बहुत आसानी से किसी भी पार्टी की शान बन जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो बहुत चेरिश होकर के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। और एक तरफ वो है जिसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों किसी से नमस्ते करूं, किसी को करना होगी तो वो आकर के मुझसे नमस्ते करे। तो दोनों लोगों में से हमको ध्यान में आता है कि जो बहुत सहजता से स्वाभाविक रूप में लोगों से मिलता है, अपने व्यवहार के कारण लोगों के बीच में उठता है, बैठता है, परिचय रखता है, तो स्वाभाविक है कि वो समाज का उसी प्रकार का हिस्सा होता है। और जब आप समाज में उस तरीके का हिस्सा बनते हैं, समाज की गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में वो चीज आती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल निजी जीवन नहीं रहता, केवल पारिवारिक जीवन नहीं रहता, उसमें सामाजिक जीवन भी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सोशल एनिमल हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि समाज भी हमारा जो जीवन है उसका हिस्सा कहीं ना कहीं है। जैसे ये जो सोसाइटी है, इन्होंने तय किया, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, सब वैसे भी अलग से भी समाज का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब लोगों ने इस चीज को तय किया कि कैसे हम उस समाज के काम के साथ साथ कोई एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं जो चाहते हैं किस प्रकार से शिक्षकों से मिलें, जुलें, पढ़ें, और जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अनुभव की हैं, वो अनुभव वो साझा करना चाहते हैं आपके साथ। तो जब इस प्रकार की बातें ध्यान में आती तो हमको लगता है कि समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो स्वाभाविक है कि हमारी जो जीवनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं सोशल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जो समाज हमारे पास है उसकी भी लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो दो बातों को और इंगित करती है। ऐसे ही सामान्य सा एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ जो है बच्चे अपने शिक्षक के साथ जा रहे थे। शिक्षक ने देखा कि बहुत ज्यादा तेज धूप है और उस तेज धूप में पत्थर तोड़ने का कुछ काम चल रहा है। शिक्षक ने देखा तो बच्चे जो साथ में थे उन्होंने पूछा कि गुरुजी, यहाँ पत्थर तोड़ने का काम इतनी धूप में क्यों हो रहा है? तो गुरुजी को लगा कि मैं जवाब दूं, इससे बेहतर है कि जो इस काम को कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से जवाब आए। तो शिक्षक थोड़ा सा आगे जाकर के एक मजदूर बंधु से पूछते हैं कि भाई पत्थर तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। तो शिक्षक को लगता है सही जवाब है। बच्चे कहते हैं कि गुरुजी इन्होंने कैसा जवाब दिया, आपने तो इनसे बहुत प्यार से पूछा कि ये काम आप क्यों कर रहे हो और इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा उसका जवाब सही है, वाकई में वो अपना काम कर रहा है, मुझे जो काम करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे गए, बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। गुरुजी ने फिर एक मजदूर बंधु से पूछा। तो मजदूर बंधु ने कहा कि गुरुजी मेरा घर है, परिवार है, माता पिता है, बीवी बच्चे हैं, सबका लालन पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो गुरुजी को लगा ठीक बात है। थोड़ा और आगे गए तो बच्चों ने पूछा शिक्षक से कि यहाँ एक बार और पूछना चाहिए। तो शिक्षक को उस मजदूर बंधु ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुवर, मैं यहाँ पर और मेरे साथ में जितने लोग हैं सब यहाँ पर एक भवन का निर्माण हो रहा है और उसमें एक शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा है, मतलब एक विद्यालय बनने जा रहा है, उस गांव का पहला विद्यालय बनने जा रहा था। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस काम को कर रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आप शिक्षक हैं, अगर आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो हम इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
तो ध्यान में आता है तीनों की परिस्थिति एक जैसी है। दोपहर का समय है, तीनों के लिए धूप बराबर है, तीनों का शिक्षा दीक्षा का स्तर भी एक जैसा है, तीनों पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क है तो दृष्टिकोण में। पहले को लगता है कि मजबूरी है, मजबूरी में कर रहा हूँ, दूसरे को लगता है कि जिम्मेदारी है, घर परिवार का लालन पालन कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ, तीसरे को लगता है कि मेरा सौभाग्य है। तो ऐसा ही हम सब लोगों के लिए भी है। आप जितने लोग इस सोसाइटी के संस्था के साथ लगातार जुड़े हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है आप सब साधुवाद के पात्र हैं जो तीसरे प्रकार से सोचते हैं कि समाज के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए। थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर ध्यान में आता है सबसे आखिरी में जब आता है तो आता है अर्थ का प्रबंधन। आखिरी में इसलिए क्योंकि जीवन में जब सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक होती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं, बहुत अच्छे से संचालित होती हैं, तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमिकली भी सारी चीजें वैसे की वैसे ही मैनेज होती हैं। तो जीवन में अर्थ का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि मैं जो भी कमाती हूँ या जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी को पॉकेट मनी मिलती होगी, जब पॉकेट मनी मिलती होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ जो पैसे माता पिता देते हैं तो उसमें से सब खर्च करने के नहीं होते, कुछ बचा के रखने के लिए होते हैं। तो जब भी ऐसा समय आता है तो ध्यान में आता है कि ऐसा समय में वो जो हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको कैसे उपयोग में लाएंगे जब आवश्यकता लगेगी घर को, परिवार को। तो ध्यान में आया कि जब ये जो अर्थ का प्रबंधन है हमारे अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो सभी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जब 2016 की में जब ऐसा समय आया जब लोगों ने घरों से जो पैसे की आवश्यकता थी तो महिलाओं ने जो अलग अलग जो पैसे छुपा करके रखे थे वो निकल करके बाहर है, क्योंकि वो बहुत बेहतर ढंग से घर परिवार को चलाती है। वैसे ही जब आप नौकरी पेशा हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत छोटे छोटे से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर मैं 10,000 रुपए कमाती हूँ तो 10,000 रुपए में से मुझे हर महीने किसी भी परिस्थिति में 1,000 रुपए तो बचाना ही बचाना है। तो जब हम इस प्रकार से प्रबंधन करके चलते हैं कि मेरे लिए जिन चीजों की आवश्यकता है तो क्या वाकई में उस चीज की आवश्यकता उस रूप में है। मेरे पास टू व्हीलर है तो क्या मुझे फोर व्हीलर की आवश्यकता है, मेरे पास फोर व्हीलर है तो मुझे और बड़ी फोर व्हीलर की आवश्यकता है। ये जो सारी चीजें हैं कि जीवन में जिन चीजों का महत्व है वो सभी चीजें जीवन में तो कभी खत्म नहीं होंगी। जब मेरे पास साइकिल थी तो मुझे लगता था कि अब मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी आई तो मुझे लगा 4 पहिए वाली आना चाहिए, 4 पहिए वाली आती तो लगता है कि और बड़ी आना चाहिए, और बड़ी आएगी। तो ये इसका कोई अंत नहीं है। तो स्वाभाविक है सपने तो देखना ही चाहिए, उन्हें पूरा भी करना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए, लेकिन कभी भी पैसा जो है वो वेस्ट नहीं हो। बहुत छोटा सा उदाहरण है, इस पूरे कोरोना का जो समय निकला इसमें बहुत सारे ऐसे लोग संज्ञान में, ऐसे ध्यान में, आप में से बहुत सारे लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि जो बहुत अलग प्रकार का जीवन जीते थे, जिनका भौतिक जीवन बहुत जो है विशिष्ट प्रकार का था, लेकिन इस समय में जब बहुत परिस्थितियां खराब हुई तो ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास बहुत बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं बच पाया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन स्तर उतना ऊपर बढ़ा लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारने चाहिए, तो उस चादर के भी बाहर जब पैर चले जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। तो जीवन में अर्थ का प्रबंधन बहुत जरूरी है। भले ही आप कितने ही संपन्न हैं, लेकिन अर्थ का प्रबंधन आवश्यक है। अगर हम करेंगे तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें हम वो सब चीजें सिखा पाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। इन सब चीजों के साथ में एक बहुत छोटी सी और कहानी है आप सबके साथ साझा करती हूँ। दो वास्तविक कहानी है। दो टीम के लीडर्स थे। मैनेजर ने दोनों टीम लीडर्स को, रायपुर के एक गांव के पास की कहानी है, गांव का नाम एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है। टीम लीडर्स को मैनेजर ने कहा कि भाई आप जाकर के आसपास के गांव में जरा पता करके आए, जूतों की एक फैक्ट्री लगानी है। तो दोनों जो टीम लीडर हैं वो जाते हैं। तो एक रात में रुकते हैं। रात में जो एक टीम लीडर है वो मैनेजर को फोन करता है, बोले सर यहाँ पर तो कोई भी जूते नहीं पहनता, तो इसलिए यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगले दिन जो है सुबह जो मैनेजर है वो दूसरे टीम लीडर को फोन करते हैं कि भाई अब वापस आना है। तो वो कहता है कि सर मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं प्लानिंग करके आऊंगा, जगह देख करके आऊंगा, यहाँ जूतों की फैक्ट्री जरूर लगाना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल होगी और हम उस प्रकार के जूते बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूते नहीं पहनता। तो अगर यहाँ लोग जूते नहीं पहनते तो हम वैसे जूते बनाएंगे जो यहाँ बहुत निम्न स्तर का व्यक्ति भी जूते
पहनना प्रारंभ कर दे। तो ये फर्क दोनों के दृष्टिकोण में, एक को ऐसा लगता है कि नकारात्मक क्या चीज है, दूसरे को लगता है कि सकारात्मक क्या चीज है। जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण हम हमेशा सुनते हैं कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये वाला उदाहरण सामान्यतः हम सब सुनते ही आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जीवन में जब हम दूसरों को देखते हैं तो मेरा जीवन किसी के जीवन के जैसा नहीं हो सकता। जो भी साइंस के लोग हैं और सामान्य लोगों को भी पता है कि हम में से सबका डीएनए अलग है। जो मुझ में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मुझ में नहीं है। तो कभी भी किसी से अपनी तुलना जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। जब हम तुलना करने लगते हैं तो स्वाभाविक है जीवन में हम कभी खुश नहीं रह सकते। हर चीज की तुलना जो है वो हमेशा दुख ही देती है। तो सबसे पहले हम प्रयास करें कि कभी भी किसी से तुलना नहीं करें। दूसरा बहुत छोटा-सा काम जो है, आपको बहुत अच्छे जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलें। सच बोलेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। अगर एक झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ, 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 झूठ बोलना पड़ता है। आजकल मोबाइल है तो स्वाभाविक है कि फ़ोन पे हम किसी को भी कह देते हैं कि मैं अभी नवलखे पर हूँ और मालूम पड़ता है कि मैं भी राजवाड़े पर ही हूँ। तो ये बात बहुत छोटी-सी है, लेकिन ये इस प्रकार के झूठ हैं जो हमारे बच्चे हैं, जब वो सुनते हैं तो वो भी उन्हीं तरीकों को फ़ॉलो करते हैं। और स्वाभाविक ही कि एक झूठ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर हमारी आदत बन जाती है, हम फिर उसको लगातार-लगातार करते रहते हैं। आप प्रयास कीजिए 1 हफ्ते तक केवल सच बोलेंगे, किसी भी रूप में। तो जब आप सच बोलना शुरू करेंगे तो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगला है किसी की भी निंदा नहीं करें। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति का अपना नेचर है। सब अपने प्रकार से जीवन को जीते हैं, हर किसी का अपना मानसिक स्तर है। कोई भी किसी के जैसा नहीं है, तो स्वाभाविक है किसी काम को आप बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो सकता है कि आपके साथ में काम करने वाले या जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उस तरीके से उस काम को नहीं कर सकते हो। तो स्वाभाविक है, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करें। वो सुना है ना, निंदक नीर राखी आंगन कुटीर छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल कर सुभाए। हाँ, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो हमें हमारी कमियां बताता है, तो स्वाभाविक है आप उसका आदर करें। जब आपको अपनी कमियां मालूम पड़ेगी तो उन कमियों के साथ हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। कमी पता लगेगी तो उस कमी को कैसे समाप्त करना है। जैसे जैसे कमियां मालूम पड़ेंगी वैसे वैसे कमी समाप्त होगी और हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो हमेशा सच बोलना है, निंदा कभी नहीं करना है। अगली चीज है कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आज मेरे पास सब कुछ है और ये भी हो सकता है कि कल मेरे पास कुछ भी ना हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। देश में भी ऐसे कई बहुत बड़े-बड़े उदाहरण हैं जो बहुत सक्षम, बहुत समर्थ हर रूप में थे। लेकिन उन लोगों के जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि जब जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो भी वो अपनी पूरी नहीं कर पाए। आज जेल की हवा भी उन लोगों को खाना पड़ रही है, ऐसे नामों को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं नाम हमको ध्यान में आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमको ध्यान में आते हैं। तो इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जितना सहज हों, जितना सरल हों वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर है। अब सहज और सरल होना क्यों ज़रूरी है? तो ध्यान में आता है कि ये हमेशा मुस्कुराते रहना ये मेरा मौलिक गुण है। तो स्वाभाविक है कि आप जब भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, नैसर्गिक जो आपका गुण है, उसके साथ आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आपको जो पहनावा पसंद है, आपको जो खान-पान पसंद है, अगर आप उसी के साथ रहेंगे, तो आप बहुत सहजता से अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे स्वाभाविक है कुछ लोग हिंदी बोलने में अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकती हूँ। तो ये मेरा मौलिक गुण है, तो अपने मौलिक गुण से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो हमेशा सहज रहें, सरल रहें। हमेशा अपनी ताकत को पहचानें, कभी भी अपनी कमज़ोरियों को लेकर के और उसके बारे में हमेशा बात करना हमेशा अपनी कमज़ोरियों का रोना रोते रहना कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं यहाँ फ़ेल हो गई, बजाय उसके उन चीज़ों को देखना जो हमारी ताकत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जीवन में हम लोग जब पीछे देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि बहुत सारे अवसर हमको जीवन में मिलते हैं। फिर हम बाद में पछताते हैं कि इस अवसर को हम इस प्रकार से नहीं भुना पाए। तो स्वाभाविक है कि इन सब चीज़ों को जीवन में अपनी ताकत को पहचान करके कैसे जो मेरी ताकत है वो मेरी सारी कमज़ोरियों को छुपा सकती है। ये प्रयास हमको करना चाहिए।
इसके बाद है कि जीवन का एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। स्वाभाविक है, मैं अगर गाड़ी लेकर के निकली और मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो जब जाना कहाँ है ये नहीं मालूम है तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जीवन का लक्ष्य जरूरी है। और पहली चीज प्रयास करें कि छोटे 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 लक्ष्य बनाएं। जब लक्ष्य छोटे होते हैं तो वो जल्दी पूरे होते हैं, तो खुशी भी मिलती है। जब खुशी मिलती है तो अगला लक्ष्य बनाने के लिए उत्साह भी मिलता है, और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ हम अपने आगे के लक्ष्यों की ओर बढ़ पाते हैं। तो जैसे जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो अपनी कोई यूनिट अगर उन्होंने तय की है कि एक हफ्ते में मुझे इस यूनिट को पूरा करना है, वो लक्ष्य बनाए, फिर अगले हफ्ते दूसरी यूनिट को पूरा करें, फिर आगे लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे 5 दिन में अब एक यूनिट पूरी करना है। तो जैसे जैसे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं तो खुशी मिलती है। जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में जो तय किया है कि मुझे मेरा एक मकान बनाना है, या अगर मेरा घर है तो मुझे गाड़ी लेनी है, या जो भी आप लोगों ने हर किसी का अपना लक्ष्य होता है, जो भी तय किया है, पढ़ाई के लिए अगर आगे की तय किया है तो उन सब चीजों का लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य को पूरा करने का लगातार प्रयास करेंगे। जब छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य का प्रयास करेंगे पूरा करने का, तो जरूर पूरा होगा। जीवन में प्लानिंग बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं सोच लूं कि मैंने सुबह सोचा कि आज मेरे ये सारे काम हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे होंगे? जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो प्लानिंग का बहुत महत्व है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जीवन प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है। और जरूरी है कि हम कभी भी अपना जो जीवन है वो आपका अपना जीवन है। आप अपना जीवन जिस तरीके से जिएंगे, जब जीवन में हमको लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लगता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, एक अच्छी नौकरी है, 2 वक्त का बहुत अच्छा भोजन है, जो भी चीज चाहते हैं वो मुझे जीवन में मिलती है, तो इतना पर्याप्त है। क्योंकि जितना सोचते जाएंगे उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इन सब चीजों से खुशी मिलना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप दुखी हैं किसी चीज से, तो हमेशा अपने से नीचे वाले की तरफ सोचें। मेरे पास घर है, उसके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो जो बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे पास है, हमारे जीवन में है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन दूसरों से बेहतर जी रहे हैं। फिर अगली चीज है कि जब हम बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जिस समाज का हम हिस्सा है, तो हम अपने बेहतर जीवन के साथ साथ उसको भी बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंत में एक बहुत छोटी सी कहानी आप सब लोगों से और साझा करना चाहती हूँ। एक सेठ जी के यहाँ पर एक लकड़हारा पेड़ काटने का काम कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। बहुत गर्मी के दिन थे। लकड़हारे को प्यास लगी, लकड़हारा सेठ जी के पास गया और उसने सेठ जी से कहा, दरवाजा खटखटा करके, कि सेठ जी बहुत प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा कि थोड़ी देर रुको, किसी आदमी को आने दो। लकड़हारा फिर लकड़ियां काटने चला गया। फिर दोबारा आया, दोबारा सेठ जी ने वही जवाब दिया। अब लकड़हारे के सब्र का बांध टूट गया, बहुत जोर से उसे प्यास लगी। उसे लगा कि अगर अब पानी नहीं मिला तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लकड़हारे ने फिर दरवाजा खटखटाया, सेठ जी बाहर आए, झल्लाते हुए बोले, मैंने तुम्हें कहा ना कि किसी आदमी को आने दो। लकड़हारे ने विनम्रता पूर्वक कहा, सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। तो यही जीवन प्रबंधन है कि हम जीवन में बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, सब कुछ बन जाएं, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने। ये बहुत बेहतर है। जीवन एक बार मिला है, अगली बार कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को हम कैसे जीते हैं, अपने जो चाबी है वो अपने हाथ में रखें। हम क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं, उसका अपना एक दायरा है। और उस दायरे के साथ साथ हमेशा सकारात्मक सोच जब हम रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक बेहतर जीवन हम जीते हैं। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं, हो सकता है कि आपको नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी है वहां काम करना। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों में भी कैसे हम अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर रख सकते हैं, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसकी चिंता करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें। यही जीवन प्रबंधन है। और हमारे जीवन का प्रबंधन केवल और केवल और केवल हमारे हाथ में है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमारी ऐसी होना चाहिए कि जिसमें हम अपने लिए भी समय निकाल सकें, और हम कहीं ना कहीं वो हमारे जो शौक हैं, जो हमें पसंद है, जो काम हमें अच्छे लगते हैं, वो भी कर सकें।
दिन भर में कुछ 1-2 लोग ऐसे जिनसे बात करना हमें अच्छा लगता है, वो बात भी हम कर सके, अपने घर परिवार के लिए समय निकाल सके, माता पिता से बात कर सकें, एक साथ घर परिवार के साथ बैठ के भोजन कर सके, उसका आनंद ले सके। तो जब ये सब चीजें छोटी छोटी होने लगती हैं, दूसरों से तुलना करना बंद कर दें, रिएक्ट करना बंद कर दें, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, तो बहुत छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप प्रयास अभी से करेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी हमको दिखाई देगा। आप सब लोग ये सारा विषय जानते ही थे, मैंने बस थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से उसको एक साथ जोड़ करके बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग लगातार सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो बातें मैंने कही आप सब लोगों को संज्ञान में है ही। लेकिन बस सब बातों को थोड़ा सा जोड़ करके और एक साथ बताने की कोशिश छोटी सी मैंने की है। सभी जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और पूरे समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा बीड़ा आपने उठाया है इस समाज के काम के लिए। उसमें जब भी आवश्यकता लगेगी, जैसे भी लगेगी, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी। नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Anybody has any questions, any concerns? हम में से कोई अगर मैम से कुछ बात करना चाहते हैं? Okay, so we are going to wind up this session. I guess no questions from the attendees. Ma'am, on behalf of Super and Mass Education, I heartily thank you for this wonderful session. It was very informative and helpful. Thanks again, ma'am, for your precious time which you have given us in such a short notice. I also thank the attendees for being associated with us through this webinar. And in future also, we'll schedule more sessions like this on various other topics as well. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू। वंडरफुल माला मैम, मजा आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी जी जी, थैंक यू सो मच।